23 আবার আমরা সবাই আগে কারা পিছে কারা দিকে দিকে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক অমিত ভাই ওয়েলকাম অমিত শাহজি ওয়েলকাম অমিত শাহজি ওয়েলকাম মনমোহনজি লং লেফট অমিত ভাই ওয়েলকাম भारत माता के भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी वेलकम राज्य जनप्रिय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी वेलकम भारत माता के देशी आभार আমরা সবাই দিকে দিকে সমাগত আজকের এই জনক বিজয় সংকল্প আমরা এক্ষুনি শুরু করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আজকের এই বিজয় সংকল্প র্যালির প্রধান বক্তা প্রধান অতিথি আমাদের সবার আদরণীয় মাননীয় অমিত শাহজি। আমরা অনুপুলিশ হাততালি দিয়ে ওনাকে প্রথমে স্বাগত জানাবো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্যের সাংগঠনিক প্রভারী ওনাকে আমরা আমাদের আজকের এই সভা মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে আছেন সর্বভারতীয় জনজাতি মোর্চার মাননীয় সভাপতি সাংসদ সমীর উরাংজি, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র আমাদের সবার প্রিয় আদরণীয় দাদা সম্বিত পাত্রাজি, ওনাকেও আমরা আজকের এই সমাবেশে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এখন সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এখন আজকের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহজি এখন আমাদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য সবাইকে নমস্কার। ভাই আজকের এই বিশাল সংকল্প জনসমাবেশে উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি, উপস্থিত আমাদের নর্থ ইস্ট কোঅর্ডিনেটর শ্রী সম্বিত পাত্রাজি, উপস্থিত আছেন মহেন্দ্র সিংজি ইলেকশন ইনচার্জ, উপস্থিত আমাদের মাননীয় শ্রী রেবতী ত্রিপুরাজি, উপস্থিত আছেন এমএলএ কল্যাণী রায়জি, উপস্থিত পিনাকি দাস চৌধুরী, সুব্রত মজুমদারজি, বিকাশ দেববর্মা, প্রশান্ত দেববর্মা এবং অন্যান্য যারা এখানে মঞ্চে আমাদের ক্যান্ডিডেটরা উপস্থিত আছেন। আমার সামনে উপস্থিত আছেন মিডিয়া বন্ধুরা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা আমাদের সমস্ত মা বোনেরা। সর্বপ্রথম আমি সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে 2018-এর যিনি আমাদের মুক্তিদাতা, এই কোভিডের থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, আমাদের বর্তমান যিনি তখন উনি ছিলেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী অমিত শাহজি। উনি আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, আজ আবার এই 5 বছর পর নতুন করে উনি এসেছেন আপনাদের সামনে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা এই 5 বছরে আমাদের 2 বছর এই কোভিড থাকা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের মোদীজির মার্গদর্শনে
এই ত্রিপুরাকে কিভাবে উন্নতি শিখরে পৌঁছে নিয়ে যেতে পারি। বন্ধুগণ, আমরা গর্বিত যে 17 কোটি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে পার্টি, তার সদস্য সংখ্যা প্রায় 17 কোটি, তার আমরা সবাই সদস্য। আজকে এই পার্টি আমরা থাকাতে আমরা ত্রিপুরাতে বিশেষ করে এই কমিটিতে যেভাবে উৎখাত করে আমরা কাজ করে গেছি মানুষের জন্য, মানুষের যেসব মৌলিক অধিকার, সেই অধিকারগুলো আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং তাদের উন্নতি কল্পে আমরা কাজ করেছি। বন্ধুরা, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদেরকে হীরা মডেল আমাদের দিয়েছেন। সেই ন্যাশনাল হাইওয়ে, আমাদের এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ চলছে, অনেকগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তাছাড়া আরো 7টা ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং 4টে আবার নতুন করে আমাদের রোপওয়ে এখানে বরাদ্দ করেছে, আর্থিক অনুদান দিয়েছে, প্রায় 10,222 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের NH-08 যেটা আমাদের একমাত্র ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল, সেটাকে 4 লেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি সেটাকে 4 লেনের যাতে সেটা করা যায় তার জন্য উনি মঞ্জুরি দিয়েছেন। আমরা এখানে আজকে রেলের কথা যদি বলি, ত্রিপুরা থেকে আমরা কোনোদিন ভাবি এখানে ব্রডগেজ, আমাদের ব্রডগেজ রেলওয়ে এখানে হবে। 11টার মতো বিভিন্ন যে ট্রেন, এক্সপ্রেস ট্রেন, আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, সমস্ত এই বিভিন্ন ধরনের ট্রেন এখন ত্রিপুরা থেকে বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমরা ইন্টারনেটের স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের ত্রিপুরাতে এখন আছে। সেটাকে আমি মূল্যায়ন করছি মানুষের জন্য এবং সারা ভারতবর্ষকে আমরা হাতের মধ্যে আমরা নিয়েছি। আমরা এয়ারওয়েজের কথা যদি বলি, এখানে আমাদের যেটা নাম আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে তার নামাঙ্কন করেছিলেন, যার নাম দিয়েছেন আমাদের মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক এয়ারপোর্ট, যার কারণে এই এয়ারপোর্ট সিঙ্গারবিল নামে খ্যাত ছিল। ওনার সময় ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট এয়ারপোর্ট ছিল সেটাকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির দিল্লির যে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জনজাতিদের ঐক্যের জন্য জাতি জনজাতি আমরা চলতে পারি, সেই সুদৃঢ় যে আমাদের ভাবনা চিন্তা, তার যে সম্পর্ক, সেটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি আসার পর 3জন আমাদের যারা জনজাতির ভাইয়েরা আছেন, যারা লিডার আছেন, তাদেরকে বিভিন্ন যেসব ক্ষেত্রে তাদের নাম ধাম আছে, কেউ তাদের নাম আছে, বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছেন, তাদেরকে উনি পদ্মভূষণ দিয়েছেন, পদ্মশ্রী দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া আরো কিছুদিন আগে আমাদের লিডার ছিল IPF NC বর্তমানজিকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন, আরেকজন জনজাতিকে ওনাকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন। পাঁচজন আমাদের জনজাতি যারা ব্যক্তি আছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, তাদেরকে পদ্মশ্রী দিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবসময় জনজাতিদের জন্য সবসময় কাজ করে থাকেন। আর আমাদের এই যে জাতি এবং জনজাতিদের মধ্যে একটা ঐক্যের ফাটল তৈরি করার চেষ্টা অনেক করেছেন। আমরা জানি এর মধ্যে এবং সিপিএম একসাথে মিতাল। বন্ধুগণ, এখানে আপনারা সবাই জানেন আমি খোয়াইতে অনেকবার এসেছি। যখনই আমি সেই যে ভাষণ দিতে যাই, প্রথমে বলে এখানে এতগুলো আমাদের যারা বিরোধী করার ক্ষেত্রে তাদেরকে খুন করা হয়েছে, এখানে ওনাদের মাল্যদান করুন, তারপরে এসে আপনি ভাষণ রাখুন। সর্বত্র সব জায়গায় খুন সন্ত্রাসের আমরা দেখি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা পেয়েছি। আমাদের হাজার হাজার যখনই নির্বাচন হতো, সন্ত্রাস হতো, আমাদের কার্যকর্তারা বাইরে চলে যেতে হতো, তার থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে একটাই আবেদন, আমার আর কিছু না, যারা যারা আমাদের IPFটির আমাদের NC ওনার কন্যা এখানে আছেন এবং আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত যারা মনোনীত প্রার্থী আগেও তারা মেরেছেন, তাদেরকে আমি নিশ্চিত যে আগামী 16 তারিখ আপনারা সবাই আঙ্গুল টিপে আর সকাল সকাল গিয়ে অনেক ভোটে ওনাদেরকে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা আমি করছি। বন্ধুগণ, আগামী আবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে নিশ্চিত আবার হবে এবং আমাদের সামনে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যে আছেন, আমাদের সাথে অমিত শাহ জি আছেন, আমাদের সাথে JP নাড্ডা জি আছেন, এরকম অনেক গার্জিয়ান আমাদের সাথে আছেন। কাজেই আমাদের আর ভয় কিছু নেই। বন্ধুগণ, আমরা বলছি যারা আমাদেরকে কংগ্রেস এবং CPM অনেকে বলে এখানে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্রের কিছুই নেই। আমি ওনাদেরকে বলছি, যদি গণতন্ত্র নাই থাকে আপনারা
আগে লুকিয়ে লুকিয়ে যে প্রেম করতে এখানে দোষী ছিল, দিল্লিতে দোষী ছিল, এখানে তো এখন খুললাম আপনারা দোষী করছেন। তো আমাদের কাছে হচ্ছে বন্ধুগণ, এদের সমস্ত জল্পনা কল্পনা যেভাবে আমরা টেবিলে কাজ করতে ফাঁস হয়ে গেছে। আমার দুঃখ লাগে এখন তারা একই কংগ্রেসের সিপিএম অফিস থেকে বেরো, ওরা সবসময় ডান্ডা মেরে কাজ করে। আমাদের পার্টি গুন্ডা পার্টি না, পার্টি অত্যন্ত শৃঙ্খলার পার্টি এবং আমরা ট্রান্সপারেন্সি পার্টি। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সরকার চালাচ্ছেন সুস্থ নীতির মাধ্যমে, স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে আমরা সেভাবে চলি, আমরা কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমরা সরকারি কর্মচারী, আমার আগে যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আমাদের বিপ্লব কুমার দেবজি, উনি 3% দিয়ে দিয়েছেন। আমি আশা করে আমার সরকার এবং আমরা টিম আমরা ডিসিশন নিয়েছি 5% আমরা দিয়ে দেবো। এর আজকে যত দিয়ে আমরা দিতে পারবো 12% আমরা দিয়ে দিয়েছি। সবাই খুশি, সমস্ত কর্মচারী মহল খুশি। আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে চাই এবং আপনারা দেখেন প্রায় 3000-এর মতো কোন জায়গার মধ্যে কোন স্বচ্ছতার কোন বিষয় নেই, চাকরি দিয়েছি। আমরা এর মধ্যে দেখেছেন যে 6000 উপর স্পেশাল এক্সিকিউটিভের চাকরি আমরা ঘোষণা করেছি, সেখানেও স্বচ্ছ নীতি। আগে কোনো কিছু হলেই কোর্টে যেতে হতো, কোর্টে গেলে সেখান থেকে দেখা যায় সেই চাকরিগুলো বাতিল হয়ে যেত। আমরা যেহেতু স্বচ্ছ নীতি আমাদের আদর্শ পুরুষ প্রধানমন্ত্রীর আমরা কাজ করি, স্বচ্ছ নীতি কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন জেআরবিটি আমরা রেজাল্ট কিছুদিন আগে আমরা বের করেছি, সেখানেও কোনো সমস্যা নেই। বন্ধুগণ, আমি এই বললাম যে আমরা স্বচ্ছ নীতি নিয়ে আমরা কাজ করি এবং আগামী দিনে স্বচ্ছতার সাথে আপনারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে জিতাবেন এই আশা রেখে শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, भारत माता की जय। मैं देश के आदरणीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी को मारने के लिए विनती कर अनुमति उनको बोलता हूँ। मेरे साथ बोलिए, क्यों भाई, क्या हो गए आप लोग आवाज को? खुबाई वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? देखो, फिर से मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनानी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकट की मुट्ठी भी और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पात्रा जी, त्रिपुरा के प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे सांसद श्री समीर उरांव जी, आज यहां पर आश्रमवाड़ी सीट से आईपीएफटी की प्रत्याशी श्रीमती जयंती देव वर्मा उपस्थित है। जयंती जी आगे आइए, इसके लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। जयंती देव वर्मा जी, रामचंद्र दास, श्री प्रशांत देव वर्मा जी, प्रशांत आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। प्रशांत के लिए सभी लोग ताली बजाए। यही सीट से भाजपा के प्रत्याशी कोबई से श्री सुब्रत मधुरा जी, इस बार से एक बार ताली बजाओ सभी लोग। कल्याणपुर प्रमोद नगर से श्री पिनाकिन दास चौधरी जी, केलिया मुरा से श्री कल्याणी जी आगे आइए आप। कृष्णा श्री विकास देवरा जी, और इस आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले खोवाई नदी के किनारे पुण्य भूमि को
मैं प्रणाम कर कर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस पवित्र धरती की मां खोवाई नदी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे 2018 का माहौल याद आता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, चलो पलटाई, और चलो पलटाई के नारे को जनता ने जन जन का नारा दिया, जन का नारा बनाया। हमारे नारे को आपने स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मित्रों, हमने चलो पलटाई का नारा मुख्यमंत्री बदलने के लिए नहीं, हमने चलो पलटाई का नारा सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं जब 5 साल के बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूं तब गर्व से कह सकता हूं कि 27 साल के एक कम्युनिस्ट के कुशासन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 27 साल से हिंसा का तांडव जो त्रिपुरा में चल रहा था, उसको बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और 27 साल से जनजाति भाइयों के साथ, आदिवासी जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था, को भी समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार। आज मैं, मेरे परम मुझसे बहुत बड़े थे, हमेशा मुझे बहुत उचित सलाह देते थे। श्री एनसी देवबर्मन को भी याद करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने एनसी देवबर्मन जी को पद्म पुरस्कार देकर समग्र त्रिपुरा की जनजातियों का सम्मान करने का काम किया। आज देवबर्मन जी की बेटी जयंती जी आज साथ है, आईपीएफटी भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी है और देवबर्मन जी के जनजातीय कल्याण, त्रिपुरा के कल्याण का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ा रही है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पहला एक सीधा विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं? फिर से कम्युनिस्ट सरकार आए? जोर से बोले चाहते हैं क्या? और जोर से बोले चाहते हैं क्या? कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा होकर फिर से त्रिपुरा को तबाह करने के लिए निकले। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन क्रिमिनलों का शासन, गुनाहितों का शासन था और कांग्रेस का शासन करप्ट शासन। 50 साल के इतिहास में 30 साल कम्युनिस्टों ने शासन किया, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया और 5 साल भाजपा और Bubagra, pila khulumo. Ini Dewan Bazar, Hai Kai, Don Bosco, Ground to sini, Chong Mari, Soba Hai Kai, Kuthum Laimung. Kinora Bubagra Paisok Paikya, Bubagra Pila Hambai Mad. Saya Kinora Paisok Paikya, Belai, Sagno Sacrifice, Montri Punto Yakari Fainai, Chin Kasam Montri, Chin Borom Mebar Kumar Jomat Pipe Hambai Yafaro, sorry, ini Patini President, Tipramo President, Borom Gunang Kumar Kol, Bono Pipe Hambai Yafaro, Tayoro, Chin Sotro Gulagatini, Chin candidate, Borom Gunang. Tai Chori Lamni candidate, Borom Gunang de Borma, Tai
Puri Mothani, Joint Chairman, Menang Sindukuna Jomatia, Vice Chairman, Bono Paiplaya Hamba Yafaro, Taibor Chini Siklani, Menang Runel de Borma, GS Suros de Borma, Tai sini Tni, Sunil Koloy, Tairo Panano, MDC Umar de Borma, Tai sini local leader Bornang, sini Buddho de Borma. Tai Zoto, जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चलाई है, गरीबों का कल्याण सरकार चलाई है। मित्रों, हमेशा सरकारी कर्मचारी और मजदूरों की बात करने वाली हमारी सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती। सत्ता में उसके पहले 4था और 5वां वेतन दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 7वें वेतन आयोग को लागू किया और सरकारी कर्मचारियों को उनका अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 7 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाई और त्रिपुरा के गरीबों के लिए भी 5 लाख का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनको स्वास्थ्य के बिल से मुक्ति दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कम्युनिस्टों की सरकार थी, 24,000 घरों के अंदर नल पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4,25,000 घरों में तक नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हम शांति और स्टेबिलिटी लाए, एनएलएफटी के साथ समझौता, डू और रियांग जनजाति के 40,000 के करीब लोगों को परमानेंटली बसाने की व्यवस्था की। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 9,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर हुए और नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद की जगह आज विकास के रास्ते पर चल रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, रेलवे पहुंच रही है। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय गौरव के लिए, आदि के लिए भी ढेर सारा काम किया। 75 साल में कभी भी इस देश के राष्ट्रपति कोई आदिवासी का बेटा या बेटी नहीं बेटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर हर आदिवासी का सम्मान करने का काम किया। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ मोदी सरकार ने रक्षा, सम्मान और संवाद को जोड़ा। भाइयों बहनों, पहले आदिवासियों के कल्याण के लिए 21,000 करोड़ खर्चे जाते थे देश में। मोदी जी ने 21,000 करोड़ को बढ़ाकर 86,000 करोड़ तक ले जाकर आदिवासियों के कल्याण की बात करी है। 4 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल इस बजट में घोषित किए। 30,800 नए ट्राइबल शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 157 नए नर्सरी बनाने का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने कई ढेर काम करने का भी ऐलान किया है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सभी खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 13 लाख लोगों को यहाँ पर त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 4.5 करोड़ रुपए से हवाई अड्डा बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा, और हवाई अड्डे का नाम महाराजा वीर विक्रम देव के नाम पर देकर वीर विक्रम देव के सम्मान को बढ़ाने का काम हमने किया। फेनी नदी पर मैत्री का निर्माण, व्यापार बढ़ेगा,
सरकारी कॉलेज में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का काम किया। आदिवासी जाति कल्याण विभाग के द्वारा 1.25 लाख से अधिक वनवासियों को अपनी भूमि के पट्टे भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मुद्रा योजना में 11 लाख से ज्यादा खाते खोले। 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 10 लाख लोगों को कवर किया। 2.5 लाख किसान प्रति साल 6,000 रुपया पीएम किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इतने छोटे से राज्य में 3.5 लाख महिलाओं को अपने ही घर में शौचालय देकर उनके सम्मान की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ साथ 20 शहर ओडीएफ से मुक्त घोषित किए। भारत नेट योजना को बढ़ावा दिया। एमएसपी के तहत चावल की खरीद सुनिश्चित करी। लगभग करोड़ रुपए का चावल खरीदने का काम किया। मित्रों, 943 स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षण देने की शुरुआत की। चकमा, गारो, मणिपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषाओं को ऐड करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और माणिक जी की सरकार ने भी ढेर सारे काम किए। 5 साल में त्रिपुरा की व्यक्तिगत 80% बढ़ी। किसानों की आय 6,800 रुपए थी, उसकी जगह 11,000 रुपया बढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 साल में पर्यटन 11 गुना बढ़ा है। लगभग 23 करोड़ रुपया एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लाए हैं। और मैं आपको मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर को आप देखने जाएगा। कमल के बैठी हुई मां त्रिपुर सुंदरी इतनी भव्य दिखाई पड़ेगी कि दुनिया भर से यहाँ पर आएंगे। बुनियादी ढांचा ठीक किया। फुटबॉल टर्फ के 3 मैदान, सिंथेटिक मैदान बनाए। एक टर्फ का मैदान बनाया। 20 करोड़ रुपया खेलों के लिए लगाया। और कई प्रकार के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं गत चुनाव में हम लड़े। त्रिपुरा मुद्दा तो था ही, कांग्रेस भी लड़ रही थी, कम्युनिस्ट भी। इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर आए और त्रिपुरा मुद्दा भी इनके समर्थन में लड़ी। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया। त्रिपुरा को हमने 5 साल में शांति दी, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का काम किया है। और इसके साथ साथ त्रिपुरा प्रदेश बनाना है तो एक और 5 साल आप नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। इसमें सबसे समृद्ध प्रदेश हम त्रिपुरा को बनाएंगे। और मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी कहता हूं, जो झूठे वादे कर आपके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, कम्युनिस्टों के साथ बैठे हुए उनके दास्ते में मत आइएगा। आदिवासी समाज का विकास अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश को बनाने का काम किया है। पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? जोर से मुझे हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये हमारा है या नहीं है? हमारा है या नहीं है? कम्युनिस्ट और कांग्रेस अब तक वोट बैंक की लालच में धारा 370 को हटाते नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पलक झपक कर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर के लिए कश्मीर को भारत साथ मुझे बताओ, माताओं, भाइयों, बहनों, राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब तक लटका कर, भटका कर, अटका कर बैठे। नरेंद्र मोदी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन कर दिया और बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान को भी जब आतंकवादी भेजे, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देकर जवाब देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नेता
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है। मोदी जी जहां जाते हैं सम्मान के साथ दुनिया के लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। भारत को सम्मान देने वाला शासन 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अर्थतंत्र को मजबूत किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, भारत को शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई और भारत को समृद्ध करने की नींव डाली, भारत को सुरक्षित किया। त्रिपुरा में भी इसी विकास यात्रा में जो 5 साल में यहाँ काफी कुछ हुआ, परंतु ये काफी नहीं, करना है, आगे का रास्ता प्रशस्त करना है। एक कम्युनिस्ट पूरी हो गए हैं और एक कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस समाप्त हो गई है। अब त्रिपुरा का भला कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैं आपको अपील करने आया हूं कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए। मुझे बताइए, के किसान कमल पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोले, बटन दबाएंगे? बात पर सरकार बनाएंगे? डॉक्टर मानिक शाह का हाथ मजबूत करेंगे? जोर से बोले, करेंगे? फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी